Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students, and welcome to Z English classes. Today, our topic of discussion will be types of sentences construction wise. हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी वो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस मीनिंग वाइज पे थी, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कंस्ट्रक्शन वाइज. लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक. एग्जामिन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. His courage won him honor. सबसे पहले आप इन सेंटेंसेस को गौर से देखें, then I will explain. His courage won him honor. The moon was bright and we could see our way. Night came on and rain fell heavily and we all got very wet. They rested when evening came. As the boxers advanced into the ring, the people said they would not allow them to fight. There are 5 different examples. Through these examples, we will discuss about simple sentence, compound sentence, and complex sentence. We see that sentence 1 has only one subject and one predicate. Such a sentence is called a simple sentence. For example, sentence 1 की तरफ अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर वो कह रहा है कि हमारे पास एक ही सब्जेक्ट है और एक ही प्रेडिकेट है. His courage won him honor. अब इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को अगर हम देखते हैं तो his courage मीन ये हमारे पास सब्जेक्ट है, won him honor, तो won him honor जो है ये हमारे पास प्रेडिकेट है. और इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट होता है वो सिंपल सेंटेंस कहलाते हैं. डेफिनेशन नीचे दी गई है सिंपल सेंटेंस की. A simple sentence is one which has only one subject and predicate, or a simple sentence is one which has only one finite verb. सेकंड सेंटेंस की तरफ चलते हैं. सेंटेंस 2 कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स. आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मैं हाईलाइट कर देती हूँ सेंटेंस 2 को. The moon was bright and we could see our way. अब इस सेंटेंस में अगर गौर करें आप, the moon was bright, ये हमारे पास एक सेंटेंस है. इसमें द मून हमारे पास सब्जेक्ट है और उसके बाद was bright जो है हमारे पास ये प्रेडिकेट है. we could see our way, we जो है हमारे पास सब्जेक्ट है, could see our way प्रेडिकेट है. तो इस सेंटेंस में हमारे पास 2 sentences या 2 clauses हैं and both sentences or clauses are independent. These 2 parts are joined by the coordinating conjunctions and coordinating conjunction and से हमने इनको आपस में मिलाया है. Each part consists a subject and a predicate of its own. Each part is therefore a sentence which is part of a large sentence. In other words, each part is what we call a clause. अब हमारे पास the moon was bright first clause था. We could see our way, ये हमारे पास सेकंड क्लॉज है. अब इसको हम क्लॉज भी कह सकते हैं या सिंपल सेंटेंस भी कह सकते हैं. और ये जो दोनों है हमारे पास, ये दोनों है इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं. इंडिपेंडेंट क्लॉजेस क्या होते हैं कि जो अपने मीनिंग खुद दे सकते हैं, जिनको अपने मीनिंग को इनहांस करने के लिए सेंटेंस के किसी और पार्ट की जरूरत नहीं पड़ती, वो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं. We further notice that each clause makes good sense by itself and hence can stand by itself as a complete sentence. Each clause is therefore independent of the other or of the same order or rank and is called a principal or main clause. इसको हम principal clause भी कहेंगे, इसको हम मेन क्लॉज भी कहेंगे, इसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहेंगे कि जो अपने मीनिंग खुद दे रहा हो, उसको अपने मीनिंग देने के लिए किसी और सेंटेंस के पार्ट की जरूरत ना पड़े. अब यहाँ पर हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस के एग्जांपल है. A sentence such as the second, which is made up of principal or main clauses, is called a compound sentence. अब हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास आ रही है सेंटेंस 3 की एग्जांपल दे रहा है. Sentence 3 consists of 3 clauses of the same order or rank. In other words, sentence 3 consists of 3 principal or main clauses. Night came on, ये तीनों जो दिए गए हैं एक्चुअली ये एक ही सेंटेंस था, ऊपर हमें बयान किया गया सीक्वेंस में, लेकिन इसके अंदर क्लॉजेस हैं. नाइट केम ऑन, रेन फेल हैवीली, वी ऑल गॉट वेरी वेट. अब यहाँ पर 3 क्लॉजेस हैं और तीनों क्लॉजेस ही इंडिपेंडेंट हैं, तो ये हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस है. Such a sentence is also called a compound sentence.
सबसे पहले हमने सिंपल सेंटेंस पढ़ा। सिंपल सेंटेंस क्या है, उसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है। उसके बाद हमने कंपाउंड सेंटेंस को पढ़ा। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, जिसमें 2 और 3 इंडिपेंडेंट और मेन क्लॉजेस होते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे होते, अपने मीनिंग खुद दे रहे होते हैं और उनको हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के साथ मिलाते हैं, तो वो हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस होते हैं। अब ये डेफिनेशन आ गई कंपाउंड सेंटेंस की। A compound sentence is made up of 2 or more principal or main clauses. आई होप अब सिंपल और कंपाउंड काफी हद तक आपको समझ आ गया होगा। The term double is now used for a sentence which consists of two principal or main clauses, and the term multiple for a sentence of more than two principal or main clauses. अब डबल की बात करेंगे तो डबल मीन्स टू क्लॉजेस कंसिस्ट करते होंगे उसके अंदर, एंड मल्टीपल मीन्स मोर देन टू क्लॉजेस, मेन क्लॉजेस उसके अंदर होंगे। अब यहाँ तक हमारा सिंपल सेंटेंस एंड कंपाउंड सेंटेंस जो था वो हो गया कंप्लीट। अब हम जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की तरफ। सेंटेंस 4 कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। दे रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम। अब देखें कि ये दोनों जो सेंटेंसेस हैं हमारे पास, ये आपस में डिपेंड कर रहे हैं। Each part contains a subject and a predicate of its own and forms part of a large sentence. Each part is therefore a clause. दोनों ही हमारे पास clauses हैं। We further notice that the clause they rested makes good sense by itself and hence can stand by itself as a complete sentence. It is therefore called the principal or main clause. अब कहते हैं हम जब ये बात करते हैं they rested, they सब्जेक्ट आ गया इस सेंटेंस में हमारे पास, रेस्टेड हमारे पास वर्ब आ गया, तो ये अपना मीनिंग कंप्लीट दे रहा है। इसको हम मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज कहेंगे। द क्लॉज when evening came cannot stand by itself and make good sense. It is dependent on the clause they rested. It is therefore called a dependent or subordinate clause. अब देखिए अगर हम जस्ट ये कहते हैं कि when evening came, जस्ट हम ये कहते हैं तो हमें एक बात समझ नहीं आती कि जब शाम हुई या अंधेरा छा गया तो क्या हुआ। ये डिपेंडेंट क्लॉज है। इसको अपना कंप्लीट मीनिंग देने के लिए एक और पार्ट की जरूरत पड़ेगी जो कि देर रेस्टेड होगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस, इस तरह के क्लॉजेस जो कंप्लीट मीनिंग ना दे रहे हो, उनको अपना कंप्लीट मीनिंग देने के लिए और पार्ट की जरूरत पड़े तो वो डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाते हैं। A sentence such as the fourth is called a complex sentence. Sentence 5 consists of 3 clauses. अब आपको complex sentence की समझ आ गई होगी। अब आप नीचे एक और एग्जांपल इसके बारे में आपको बता रहे हैं कि the people said as the boxer advanced into the ring. अब the people said हमारे पास मेन क्लॉज है, as the boxers advanced into the ring ये जो है हमारे पास, ये हमारे पास आ जाता है सबऑर्डिनेट एडवर्ब। थर्ड पार्ट दिया गया है दे वुड नॉट फॉलो देम टू फाइट। अब ये भी हमारे पास सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज है। तो हम लोगों ने जैसे पढ़ा कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है कि उसमें हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्लॉज या मेन क्लॉज होगा और 2 हमारे पास जो होंगे वो डिपेंडेंट क्लॉजेस हो जाएंगे। सच अ सेंटेंस इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। डेफिनेशन दी गई इसकी, a complex sentence consists of one main clause or one or more subordinate clauses. तो इसके अंदर एक मेन क्लॉज होगा जिसको हम प्रिंसिपल क्लॉज भी कहेंगे और एक या एक से ज्यादा हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉजेस होंगे या जिनको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। अगेन मैं रिकॉल कर देती हूँ ये सारे टाइप्स जो हैं विद एग्जांपल, ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से क्लियर हो सके। देखिए फर्स्ट एग्जांपल जो हमने पढ़ी थी, his courage won him honor। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये एक ही हमारे पास सेंटेंस है, हम इसको एक प्रिंसिपल क्लॉज भी कह सकते हैं जिसमें his courage हमारे पास सब्जेक्ट है, won him honor प्रेडिकेट है, तो इसको हम सिंपल सेंटेंस कहेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल है जब हम देखते हैं the moon was bright, हमारे पास ये वन क्लॉज आ गया और ये अपने मीनिंग जो है खुद ही दे रहा है, तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। we could see our way, we could see our way ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, अपनी मीनिंग हमें खुद दे रहा है। तो ये सेंटेंस जो है, इस तरह के सेंटेंसेस जिसमें 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होंगे और वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से आपस में ज्वाइन किए गए होंगे, उनको हम कहेंगे कंपाउंड सेंटेंसेस। थर्ड एग्जाम्पल, नाइट केम ऑन एंड रेन फेल हेवीली एंड वी ऑल गॉट वेरी वेट।
अब इस एग्जाम्पल में देखें, नाइट केम ऑन, हमने कहा नाइट केम ऑन के रात हो गई या अंधेरा छा गया, इसकी हमने बात की। उसके बाद हमने कहा कि एंड रेन फेल हैवीली, रेन फेल हैवीली, ये भी हमें समझ आ गई कि ये भी अपने कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, ये भी हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज है। वी ऑल गॉट वेरी वेट, तो अगर हम इन तीनों क्लॉजेस को अलग अलग भी यूज करें तो भी ये हमें अलग अलग से मीनिंग्स दे रहे होते हैं, तो ये भी हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस है। नंबर 4 पे देखते हैं, दे रेस्टेड, दे रेस्टेड इंडिपेंडेंट क्लॉज है। व्हेन इवनिंग केम, तो ये जो दूसरा पार्ट है इसका, व्हेन इवनिंग केम, ये पार्ट हमारे पास डिपेंडेंट है क्योंकि इसको मीनिंग देने के लिए फर्स्ट पार्ट की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरह के सेंटेंसेस जिसमें वन मेन क्लॉज एंड टू और मोर देन टू डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉजेस होंगे, तो वो हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास जी, look at the following compound sentences and notice the coordinating conjunction joining clauses of equal rank. I shall do it now or I shall not do it at all. अब यहाँ पर हमने और के साथ इसको मिलाया। He gave them no money nor did he help them in any way. यहाँ पर हमने nor के साथ इनको आपस में कंबाइन किया। He threw the stone but it missed the dog. यहाँ पर हमने मिस बट के साथ हमने कंबाइन किया। He neither obtained success nor deserves it. अब यहाँ पर हमने nor से इनको कंबाइन किया। He is either made or he has become a criminal. I both thanked him and rewarded him. ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स थी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की कि हमने किस तरह से उनको मिलाया। अब हम मूव ऑन करते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ, एक्सरसाइज नंबर 37, जिसमें हम डिफरेंट देखेंगे इसमें कि सिंपल सेंटेंस कौन सा है, कंपाउंड कौन सा है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन सा है। फर्स्ट वन सेंटेंस हमारे पास है, यहाँ पर हमने क्या करना है वो कहता है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर कंपाउंड एंड विच आर कॉम्प्लेक्स। इन द केस ऑफ कंपाउंड सेंटेंस सेपरेट द कोऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस ऑफ व्हिच इट इज कंपोज्ड एंड मेंशन द कंजंक्शन एंड connecting these clauses. If a sentence is complex, divide it into its clauses and state the principal clause and subordinate clause or clauses. अब हमने यहाँ पर देखना है कौन सा सेंटेंस सिंपल है, कौन सा कॉम्प्लेक्स है और कौन सा कंपाउंड है। The horse reared and the rider was thrown. तो यहाँ पर हम जब देखते हैं तो ये हमारे पास सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमने यहाँ पर ज्वाइन किसके साथ किया, एंड के साथ। ये हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है नंबर 1। नंबर 2 पे हमने देखा कि जब हमने ज्वाइन किया तो इट्स मीन कि ये जो फर्स्ट पार्ट इसका है इस सेंटेंस का, ये हमें कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, इट्स मीन कि ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। सेकंड पार्ट की तरफ हम जब गए तो हमने देखा ये भी हमें कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, इट्स मीन कि ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो यहाँ पर दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस एंड के साथ मिले हैं, तो ये सेंटेंस हमारा कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा। इसको हम कहेंगे कंपाउंड सेंटेंस। मैं कोशिश करती हूँ कि यहाँ लिख सकूं। कंपाउंड सेंटेंस, ये हमारा फर्स्ट वन कंपाउंड सेंटेंस। वॉक क्विकली एल्स यू विल नॉट ओवरटेक हिम। सेकंड सेंटेंस की तरफ हम जाते हैं, तो सेकंड सेंटेंस हमारे पास जो आ जाता है वो हमारे पास आ जाता है कंपाउंड। यू विल नॉट ओवरटेक हिम, तो इसको हम कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे। नंबर 3 की तरफ हम जाते हैं। नंबर 3 सेंटेंस जो हमारे पास है, द टाउन इन विच आई लीव इज वेरी लार्ज। द टाउन इन विच आई लीव इज वेरी लार्ज, तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। एक्चुअली ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये था, द टाउन इज वेरी लार्ज इन विच आई लिव। द टाउन इज वेरी लार्ज, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर था जो कि इंडिपेंडेंट क्लॉज था। इन विच आई लिव जो कि डिपेंडेंट क्लॉज था, तो ये उन्होंने थोड़ा सा इसको कॉम्प्लेक्स कर दिया है क्योंकि ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है। फोर्थ है, आई कॉल्ड हिम बट ही गेव मी नो आंसर। फोर्थ वन को जब हम देखेंगे कि ये हमारे पास कौन सा सेंटेंस है, तो ये हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस है। क्यों? ही कॉल्ड हिम, आई कॉल्ड हिम कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। ही गेव मी नो आंसर, ये भी हमें कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। इसको अपने मीनिंग देने के लिए रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ सेंटेंस की जरूरत नहीं है।
फिफ्थ वन की तरफ देखते हैं, आई एग्री टू योर प्रपोजल फॉर आई थिंक देम रीजनेबल। तो फिफ्थ वन सेंटेंस की जब हम बात करते हैं तो फिफ्थ वन सेंटेंस हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस है। देखिए, आई एग्री टू योर प्रपोजल्स, बात कंप्लीट होगी, समझ आ गई। आई थिंक देम रीजनेबल, तो यहाँ भी हमारे पास कंप्लीट बात है, तो ये हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा। जी, सेंटेंस नंबर 6 है, आई वेंट बिकॉज आई वॉज इनवाइटेड। अब ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। क्यों आई वेंट, मैं वहां गया, क्यों आई वॉज इनवाइटेड, उसकी रीजन थी वहां जाने की, उनके पास रीजन थी क्योंकि उनको इनवाइट किया गया था, तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। इधर ही इज ड्राउंड और सम पासिंग शिप हैज सेव्ड हिम। अब इस सेंटेंस की तरफ अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये सेंटेंस हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस है, क्योंकि हम जब ये कहते हैं ही इज ड्राउंड, अब देखिए ये हमारे पास कंजक्शंस यूज हुए हैं ईदर और ही इज ड्राउंड सम पासिंग शिप्स हैज सेव्ड हिम, तो ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं जो कि हमें खुद अपने आप मीनिंग दे रहे हैं, तो इसको हम कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे। नंबर 8 पे हम चलते हैं। आई टर्न होम बिकॉज आई वॉज टायर्ड, तो यहाँ पर हमारे पास ये कम्प्लेक्स सेंटेंस है कि मैं घर वापस आया क्योंकि मैं थक चुका था, तो उसकी रीजन दी गई है, लॉजिक दी गई है इसके अंदर। नंबर 9 पे देखते हैं हम, दे ऑलवेज टॉक हु नेवर थिंक, दे ऑलवेज टॉक हु नेवर थिंक, तो ये जो हमारे पास सेंटेंस है ये हमारे पास कम्प्लेक्स सेंटेंस है, क्योंकि ये एक रीजन, एक लॉजिक क्रिएट कर रहा है, एक पार्ट दूसरे पार्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। ही केम ऑफन देन वी एक्सपेक्टेड। नंबर 10 पे हम लोग देख रहे हैं कि नंबर 10 जो सेंटेंस है हमारे पास, ये भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, एक एक को अपने मीनिंग देने के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। ही ब्लशेस देयरफॉर ही इज गिल्टी। अब 11 की जब हम बात करते हैं तो सेंटेंस नंबर 11 हमारे पास कंपाउंड है, क्योंकि एक पार्ट ही अपने कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, उसको मीनिंग देने के लिए दूसरे पार्ट की जरूरत नहीं पड़ी। A guest is unwelcome when he stays too long। जब एक गेस्ट जो है उसको हम अनवेलकम कहते हैं जब वो बहुत लंबे अरसे तक स्टे कर लेता है, तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, क्योंकि इसके अंदर ही उसकी रीजन मौजूद है। वट एवर यू डू डू वेल, जो भी आप करो लेकिन अच्छा करो, तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। नंबर 14 पे है हमारे पास, ही मस्ट हैव डन हिज ड्यूटी फॉर ही इज अ कॉन्स्टिशियस मैन। अब यहाँ पर रीजन बयान की गई है कि उसको अपनी ड्यूटी जरूर करनी चाहिए, तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की एग्जाम्पल आ गई है। इसके बाद जब हम बात करते हैं, सॉरी 14 जो है हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नहीं कंपाउंड सेंटेंस है, क्योंकि ही मस्ट हैव डन हिज ड्यूटी। इसके बाद हमें जो उसका रिमेनिंग पार्ट है वो हमारे पास जो है अपने मीनिंग खुद कन्वे कर रहा है, तो ये हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस है। लेट मी राइट हियर, दिस इज द कंपाउंड सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, ही रश्ड इनटू द फील्ड द फोरमोस्ट फाइटिंग फेल। अब यहाँ पर इस सेंटेंस को हम देखते हैं तो 15 सेंटेंस जो है हमारे पास, जो हमारे पास आ रहा है 15 सेंटेंस, ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है जिसमें हमें वो बता रहा है इसकी रीजन। नंबर 16 पे हम चलते हैं, मैन प्रपोजेस बट गॉड डिस्पोजेस। अब 16 की जब हम बात कर रहे हैं तो 16 सेंटेंस जो है ये हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस है, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं। नेक्स्ट जब हम नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं तो वेदर इग्नोरेंस इज ब्लिस दिस फोली टू बी वॉइस। अब इस सेंटेंस 17 सेंटेंस की तरफ हम मूव ऑन करते हैं तो हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, क्योंकि एक पार्ट अपने मीनिंग देने के लिए दूसरे पार्ट की जरूरत पड़ती है। लिसन केयरफुली एंड टेक नोट्स,
18 सेंटेंस जो है ये हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस है, क्योंकि जब हम कहते हैं लिसन केयरफुली तो ये हमें कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। टेक नोट्स की जब हम बात कर रहे होते हैं तो ये भी हमें कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। इट्स मीन के दिस बोथ क्लॉजेस आर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, और जब किसी सेंटेंस में इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं तो वो हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। The heavens declare the glory of God, and the firmament shows His handiwork. अब इस सेंटेंस की स्ट्रक्चर को अगर हम फॉलो करें तो इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर से ही आपको पता चल जाएगा कि दोनों जो है अलग अलग हैं, और दूसरा जो है इसमें सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज हुए हैं जो कि एंड है, तो आप कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के जरिए से भी जज कर सकते हैं कि कौन सा सेंटेंस का पार्ट है, टाइप है। He tried hard but he did not success. तो 20 की जब हम बात करते हैं सेंटेंस नंबर 20 की तरफ हम मूव कर रहे हैं तो ये हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस है, क्योंकि ये खुद अपने मीनिंग दे रहे हैं और इनके दरमियान हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज किया है। देखिए ही ट्राइड हार्ड, बात कंप्लीट हो गई। इसके बाद हम कहते हैं ही डिड नॉट सक्सेस, तो यहाँ भी बात कंप्लीट हो गई। इसको अपने मीनिंग देने के लिए पीछे वाले पार्ट की जरूरत नहीं पड़ रही। शी मस्ट वीप और शी विल डाई। 21 की जब हम बात करते हैं तो 21 सेंटेंस भी हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस ही है। 22 की तरफ जाते हैं, दे सर्व गॉड वेल हु सर्व हिज क्रिएचर्स। तो 22 पे जब हम जा रहे हैं तो 22 सेंटेंस हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर रीजन बयान की गई है, एक एक्शन होने की वजह से दूसरे एक्शन के होने के लॉजिक बताया गया है। Man is guided by reason and beast by instinct. 23 सेंटेंस की तरफ हम जब करते हैं तो 23 सेंटेंस से हमें पता चलता है कि ये कंपाउंड सेंटेंस है, क्योंकि ये दोनों ही इसके अंदर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं। इसके बाद हमारे पास 25 फिफ्थ सेंटेंस आता है, गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। अब इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखें तो इसके स्ट्रक्चर से पता चलेगा गॉड मेड द कंट्री, बात कंप्लीट होगी, मैन मेड द टाउन, तो ये हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस की एग्जांपल है। He trudged on though he was very tired. अब इस सेंटेंस में हम देखें इसके स्ट्रक्चर में बता रहा है कि ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, क्योंकि एक सेंटेंस की जो बात है वो दूसरे के ऊपर, एक क्लॉज की बात दूसरे क्लॉज के ऊपर डिपेंड कर रही है। There was no philosopher who chose to live in a tub. 27 सेंटेंस की तरफ मूव ऑन करते हैं तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। The commons passed the bill, but the Lord threw it out. अब 28 की तरफ जब हम मूव कर रहे होते हैं तो 28 हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस है, क्योंकि ये दोनों ही अलग अलग बातों को बता रहे हैं, इनको अपनी बात बताने के लिए दूसरे पार्ट की जरूरत नहीं पड़ी होती। Tell me the news as you have heard. 29 की जब हम बात कर रहे हैं तो 29 सेंटेंस हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है कि वो मुझे न्यूज बताओ जो तुमने सुनी है, तो ये डिपेंड कर रहे हैं एक दूसरे पे। He that has most time has none to lose. अब 30 की बात कर रहे हैं हम लोग, सेंटेंस नंबर 30 हमारे पास कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन दी गई है और दोनों जो है एक दूसरे पर डिपेंडेंट अपने मीनिंग को कन्वे करने के लिए। Your arguments are witty, still they do not convince me. अब यहाँ पर हम 31st की बात कर रहे हैं, जो 31st सेंटेंस है हमारे पास, ये हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस है, क्योंकि ये अगर इन दोनों पार्ट्स को अलग अलग भी हम यूज करें तो अभी हमें इनके मीनिंग जो है वो क्लियर समझ आ रहे हैं। एवरीथिंग कम्स इफ अ मैन विल ओनली वर्क एंड वेट। अब यहाँ पर कंडीशन है, देखिए एवरीथिंग कम्स, अब यहाँ पर कब हमें कुछ भी चीज मिलेगी, जब इंसान क्या करता है, काम करता है और इसका इंतजार करता है। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस था। ओके, इसके बाद हम चल देखते हैं कि नीचे भी आई थिंक कुछ सेंटेंसेस हैं, उनको भी हम लोग कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले इन सेंटेंसेस को मुझे जो मैंने टाइप्स लिखी हुई हैं इनको रिमूव करना पड़ेगा, ताकि नेक्स्ट सेंटेंसेस को हम अच्छे तरीके से कर सकें। लेट मी रिमूव ऑल दीज टेक्स्ट बॉक्सेस।
अब हम स्टार्ट करते हैं सेंटेंस नंबर 33, उसी एक्सरसाइज का सेंटेंस नंबर 33। द सेम डे वेंट जीसस आउट ऑफ द हाउस एंड सैट बाय द सी साइड। 33 सेंटेंस की जब हम बात करते हैं तो ये हमारे पास एक कंपाउंड सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर दोनों सेट बाय द सी साइड, यहाँ भी बात कंप्लीट समझ आ रही है, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, मीनिंग के लिए दूसरे की जरूरत नहीं पड़ी। वी मस्ट ईट टू लिव बट वी शुड नॉट लिव टू ईट। 34th सेंटेंस की जब हम बात कर रहे हैं तो ये भी हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस ही है। लेट मी राइट हियर जी। वी मस्ट ईट टू लीव, यहाँ तक बात कंप्लीट होगी। वी शुड नॉट लीव टू ईट। अब यहाँ पर जो है जो बात है वो अलग से है, दूसरे के ऊपर फर्स्ट पार्ट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो ये कंपाउंड सेंटेंस है। गवर्न योर पेशेंस और दे विल गवर्न यू। 35th सेंटेंस पे जब हम लोग मूव ऑन कर रहे हैं तो 35th सेंटेंस हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस आ रहा है, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस हैं और हमें अपने कंप्लीट मीनिंग दे रहे हैं। लास्ट वन सेंटेंस इज दे डैश फॉर द डॉग्स एंड किल द cats. They means rats. For the dogs and kill the cats and beat the babies in the cradles and ate the cheese out of the weights and licked the soap from the cooks on ladles। 36 सेंटेंस पे जब हम जा रहे हैं तो ये हमारे पास एक कंपाउंड सेंटेंस है, क्योंकि तमाम पार्ट जो है इसके ये हमें अलग अलग मीनिंग दे रहे हैं और इसमें हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉजेस है। 37 सेंटेंस में जाते हैं। माई हार्ट लीप्स अप व्हेन आई बिहोल्ड अ रेनबो इन द स्काई। तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, क्योंकि कंडीशन दी गई है, व्हेन का वर्ड यहाँ पर यूज किया गया है, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ कि इट इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये हमारा आज का टॉपिक था और थोड़ा मैंने स्पीड से कवर अप करवाया ताकि थोड़े टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजें हम लोग कवर कर सकें। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। स्टिल इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क, एंड नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।